So first what we have to do, we have to create a simple web pages like that. First I want to show you this one, that we have to create this type of pages, that we will create a 3 pages: home.html, images.html, faculty.html. So we have to create this type of web pages. So how we will create this type of web pages? So let's start. First you have to open the notepad and then you have to save this file as home.html. So home, so in the IBA folder, okay, home.html. you can give another name just like as index.html, firstpage.html, it depends upon you. So home.html or index.html will be standardized name, okay. So just save it, okay, and start the coding. First you have to write down the basic code, that is the HTML start tag and close tag, okay, and then you have to give the title, okay. You can, let's say, give the title just like as IBA CC Uvado. So because we are creating the basic website for the IBA CC Uvado, college Uvado, okay, and then you have to write a body, okay, close the body tag and give the background color, BG color is equals to sky blue, okay, and then you have to write H1 IBA community college Uvado, okay, and H1 close. Save it and execute it, okay. So how you will execute it? First go to the folder where you have saved the program. So this is your program, just open it with the browser, any browser, Google Chrome. So here you can see the result, okay. So then what you have to do, you have to place or align this text at the center. सेंटर ते खणी अचणो, सेंटर ते खणण लाइ असां छा कंदासीं? सेंटर पे लाने के लिए वी हैव टू यूज। सर स्क्रीन रुक गई है सर, वहीं पे स्क्रीन रुक गई है। सर वो जो आपने गूगल में चलाया सर वो नजर नहीं आया सर। अच्छा, टैग वी हैव टू यूज द टैग दैट इज द सेंटर, CENTER, सेंटर, एंड देन क्लोज द सेंटर, क्योंकि सारी चीज़ें हम सेंटर पे रखेंगे, ओके। Then you can see the result. Save it and reload it. Yes sir. Okay. सर आपकी स्क्रीन बीच में अटक जा रही है। Okay, due to the internet problem, तो लिंक देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है A मीन्स एंकर टैग, उसके बाद आपको लिखना है हरीफ, हरीफ मीन्स हाइपर रेफरेंस, देन यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द पेज, कौन से पेज पे जाए। लेट्स से रिपीट करो प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। We have created a simple link, that is the home.html, okay. When you will click on home, you will be at this page. So how you can see the result? Save it and reload it, okay, reload it, and here you can see that you have the link, but its font size is small. So what you have to do, you have to write down the H1 tag, H1 tag start, okay. Save it, and we will not close this one. Why? Because we have to create a more links, just like as home, images, faculty, okay. Just save it and see the result, okay. Is it clear to you? Created another link, that is the images.html, okay, and the link name will be images, okay. Save it, and then you have to create another link, that will be the faculty.html, okay. एक और लिंक आपको बनानी है faculty के नाम से, faculty.html, here you have to write down the faculty, okay. एक और आपको चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बेटा आपके पास लिंक्स हैं, ये एक्चुअली ये HTML के अंदर आपको प्रोग्राम बनाने हैं। हमने home.html प्रोग्राम बना लिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से देख सकते हैं कि हमने
home.html यहाँ पे बना लिया है। तो दूसरा प्रोग्राम कौन सा बनाना है, images.html, ठीक है। तीसरा कौन सा प्रोग्राम बनाना है, faculty.html। तो हमें ये 3 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। एक प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया है home.html। ओके, जस्ट सेव इट एंड सी द रिजल्ट एंड here close it. What happened? Okay, see the result. Reload it, F5. Okay, and here you can see the result. Okay, images, we haven't created images, so here you can see your file could not be accessed because we haven't created the images file. Okay, images.html हमने create नहीं की, तो ये हमें बता रहा है कि आपके पास वो पेज नहीं है। ठीक है, तो simply what we have to do, first we have to create the images.html page. Okay, so then you have to create a new file and save as images.html. okay, it will be saved. Just you have to copy this one, Control A, Control C. Okay, Control A, select C window, Control C, it will be copied, and here you have to paste this one just like as Control V. So then what we have to do, so it will be the images page. So here you can see you can write this thing that for your identification, for your understanding, you can write images file. Okay, and save it, Control S and reload it. Okay, so here you are at the home.html, पहला पेज है आपके पास। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं आप, इमेजेस पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेजेस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है, इमेजेस की फाइल है। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसकी जो URL है वो क्या है, चेंज है, images.html। सो व्हाट वी हैव टू डू, images.html के अंदर बेटा हमें क्या करना है, हमें फोटोज रखने हैं, इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली यू हैव टू राइट द टैग दैट इज img image and source, and you have to, here you have to give the location or name of the images. So first we have to check out the name of the images. So here we have iba1.jpg, okay, iba1.jpg, iba2.jpg, iba3.jpg. So what we have to do, we have to write down their names just like as iba1.jpg. okay, save it and see the result. Okay, reload it. So here you can see that your picture has been uploaded, your picture has been inserted in your page. So how this image will be placed at left side, okay, because we have used the center tag. okay, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली we have used the center tag. ठीक है, यहाँ पे हमने center tag लगाया हुआ है। ओके, सो here you can see center tag हेस्ते ख़त्म थे, तो इधर यहाँ पे जो है ना, इधर center tag ख़त्म हो रहा है। इसका मकसद इसके अंदर जो बीच में आएगा वो सेंटर में चला जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लोज सेंटर हेयर, यहाँ पे सेंटर को क्लोज करना है और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। सो लेट्स सी द रिजल्ट, सेव इट, reload it. Okay, reload it, see the result. Okay, then what we have to do, Yes, you have to copy this image source, क्योंकि आपको एक और भी इमेज इंसर्ट करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर कितने इमेजेस डाल रहे हैं। सेव इट एंड सी द रिजल्ट। okay, 3 pictures has been inserted in your web page. So okay, so you can set their width and size. Okay, so here we are setting the width सबकी एक जितनी हो, let's say 200 pixels, and height should be 200 pixels. okay, सबकी एक जितनी हो, just copy it and here paste it, copy it, paste it. okay, save it and reload it and see the result. okay, is it clear to you? Yes, a new file that is the faculty.html. then you have to
write down, you have to create or insert picture of any teacher, just like as I have inserted for your understanding, asif.jpg. okay, and then I can give the result, just like give the link. It will be link computer.html because I am a computer teacher. okay, for this I can write this one and see the result. Save it and execute your program. okay, here reload it and then click on faculty. What will happen? okay, so this program has been created, faculty.html. okay, so here my picture is here. okay, so you can place my picture at the center. okay, so how you can place my picture at the center? Just you have to use the simple tag, that is the center, that is the center. Just here from I am closing, here I am erasing this one, just I am closing at the end of the link. यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ख़त्म किया. ओके, यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे उसको ख़त्म करके यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या है. ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर. जस्ट यहाँ पे BR दे दें. BR मीन्स ब्रेक रो. BR ब्रेक रो मतलब एक लाइन नीचे आ जाए. ठीक है, तो इसको सेव कर लें और इसको चलाएं. ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ओके, उसके बाद अगर आप उसके बाद अगर आपके पास और भी टीचर्स हैं तो जस्ट आप BR दे दें. BR. ओके, उसके बाद इसको कॉपी कर लें क्योंकि हमारे पास इतनी पिक्चर्स नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है. सो हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ वी कैन क्रिएट और इंसर्ट अनदर पिक्चर. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से कि science.html. ये मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर मुझे डिटेल आपको दिखानी है कि कंप्यूटर साइंस टीचर का नाम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके स्किल्स कौन से हैं, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो वो डिटेल में होगा ना. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस टीचर, तो मैंने जस्ट 2 टीचर की लिंक्स दी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. ओके, अब यहाँ ये मेरे पास जो है एक टीचर है, कंप्यूटर साइंस का टीचर है, दूसरा टीचर है साइंस का टीचर है. ठीक है, यहाँ पे साइंस का टीचर है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसकी डिटेल आनी चाहिए कि इस टीचर का नाम क्या है, इस टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है. ओके, और इसके स्किल्स कौन से हैं और इसका एक्सपीरियंस कितना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेटा आपको एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा HTML का. यहाँ पे आप क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे चले गए, तो इस पेज का नाम कौन सा है? computer.html. इसका मकसद है कि आपको computer.html प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. सो कैसे बनाएंगे? Ctrl+N. ओके, न्यू फाइल आ गई, इसको ही कॉपी कर लें. इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें. ठीक है, सेव कर लें. क्या नाम रखना है? computer.html. क्यों computer.html रखना है? क्योंकि कंप्यूटर के टीचर की जो डिटेल है वो हमें बतानी है. ठीक है, तो उसका नाम भी उससे रिलेटेड होना चाहिए. तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल देंगे. तो डिटेल के लिए इसको आप क्लोज कर लें. जस्ट आपको इमेज नज़र आएगी, इसको सेव करें और रिज़ल्ट पहले देखें. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं चलाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपके पास ये आ गई. ठीक है, पहले होम पे जाता हूँ, उसके बाद इमेजेस पे गए, इमेजेस पे आ गए, उसके बाद फैकल्टी पे गया, मैं फैकल्टी वाले टीचर्स भी आ गए सारे के सारे. ठीक है, तो कंप्यूटर के टीचर की डिटेल देखना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें और ये अभी जो है आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है. डिटेल आप लोग कैसे देंगे? टेबल की फॉर्म में आप लोग डिटेल देंगे. कैसे देंगे? आपको टेबल क्रिएट करनी है, एक सिंपल सी टेबल क्रिएट करें. टेबल क्रिएट करना तो सबको आता है ना. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल? आपको ये वाली टेबल बनानी है. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ही रो है. ओके, इट इज़ अ सिंगल रो, इट इज़ अनदर रो, इट इज़ थर्ड रो. ओके, 3 रो बनानी है. तो ये फर्स्ट रो है, उसके अंदर आपको पहले क्या करना है? नेम लिखना है. तो नेम मैंने लिख लिया है.
उसके बाद टीचर का नेम एक्चुअल जो है वो लिखना है, लेट्स से आसिफ अली, सेव इट। ओके, उसके बाद दूसरा रो क्रिएट करना है, ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। पहला रो मैंने क्रिएट कर दिया है, अब दूसरा रो क्रिएट करने जा रहा हूँ कि दूसरे रो में क्या लिखना है, स्किल्स लिखने हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, स्किल्स कौन कौन से हैं, लेट्स से HTML, कॉपी, CSS, उसके बाद क्या करना है, C प्रोग्रामिंग। ओके, दूसरा रो भी क्रिएट हो गया। अब तीसरा रो कैसे क्रिएट करना है, कॉपी करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करें। एक्सपीरियंस लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस क्या है, जो भी है टीचर का जितना एक्सपीरियंस है, जस्ट राइट डाउन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, सेव करें इसको, आप ऊपर वाले को मिटा दें, सेव करें एंड देन रीलोड इट एंड सी द रिजल्ट। ओके, इज इट क्लियर टू यू?